Yesterday what we did, anybody remembers? Yes, we have seen how to find out limiting reagent and how to do the calculation of the problems based on limiting reagent. I think it was very much clear to you all, and you don't want to know anything more. Anybody in the class who wants to repeat limiting reagent? Okay, then we are going to shift to a new topic, that is empirical formula. Children, what is empirical formula and what do we mean by the term molecular formula? First of all, let us see what is molecular formula. Molecular formula is the formula by which we represent one molecule of the substance. Molecular formula of a compound represent the actual number of atoms present in one molecule of the compound. That is, it shows the real formula of its one molecule. आप जब भी किसी एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किस प्रपोर्शन में वो बॉन्डेड है, तो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन C6H12O6. This is the molecular formula of glucose. Molecular formula of glucose. What does it mean? That glucose is composed of carbon, hydrogen, and oxygen. Carbon, hydrogen, and oxygen are bonded in a ratio 6:12:6. The simplest ratio comes out to be 1:2:1. But that is when we talk of the actual number of atoms. That means there are 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, and 6 atoms of oxygen. They are bonded. This gives you the molecular formula. I think you know what is the meaning of molecular formula. You can talk of more molecules like methane, CH4, it is a molecular formula. Water, H2O, it is the molecular formula. Carbon dioxide, CO2, it is the molecular formula. So I think you all know what is the meaning of molecular formula. But this term may be a new term to you, empirical formula. What is empirical formula? The empirical formula of a compound expresses the simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of the compound. For example, just now we have seen the example C6H12O6. अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का simplest ratio express करना चाहे तो क्या होगा? Anybody in the class? C6H12O6. अगर इसको आप simplest ratio में express करना चाहे तो क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? CH2O. 1:2:1. That is C1H2O1. यही होगा ना? 1 हम नहीं लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा CH2O. क्लियर है? आप एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं. H2O2 हाइड्रोजन peroxide. Hydrogen is to oxygen is 2:1, and this is 2:1. So it is the molecular formula, and it is 1:1. अगर simplest ratio में आप इसको ले आते हैं, then it becomes HO. It is your molecular formula. तो sorry, empirical formula. Molecular formula में actual number of atoms होते हैं और empirical formula में simplest ratio, whole number ratio of atoms होते हैं. Clear है? CH4 is the molecular formula. Carbon is to hydrogen is in the ratio 1:4. अगर आप इसको simplest भी करेंगे तो ये 1:4 ही रहेगा, यानी कि इसका empirical formula CH4 ही होगा. That means molecular formula और simplest formula, empirical formula दोनों यहाँ same हो जाएगा. एक और example ले लो, C2H6. C2H6 इसमें कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो है 2:6. इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा 1:3. एंड इफ यू विल राइट CH3, it is the empirical formula. C2H6, it is the molecular formula. किसका molecular formula है? कोई बता सकता है इसका नाम? इथेन. और इथेन का empirical formula क्या हो गया? CH3. तो molecular formula और empirical formula समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Now, what is the relation between empirical formula and molecular formula? Do we have any relation? Yes. Molecular formula
is equal to n into empirical formula. Molecular formula is equal to n into empirical formula. ठीक है, तो where n is any natural number 1 2 3 4, कुछ भी natural number हो सकता है. For example, C6 H12O6 अगर हम ये लिखें तो क्या इस फॉर्मूला को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, तो व्हाट इज द रेशियो? 6:12:6. अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं और इसको लिखूं CH2O, तो what is CH2O? It is empirical formula. And what is this natural number? This is N. ठीक है, किसी भी empirical formula को किसी भी empirical formula को N नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम. क्लियर है? तो हम कह सकते हैं N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. यहाँ पर N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, मगर जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ N. मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम. We can also find out the molecular formula mass by empirical formula mass. Suppose glucose C6H12O6. C6H12O6. कोई मुझे इसका molecular formula mass निकाल 180. 180. Very good. अब 180. अब इसका empirical formula क्या होगा? CH2O. और इसका फॉर्मूला मास क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 30. 30. तो अब आप बताइए कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय empirical formula mass that is 30. तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 by 30 that is equal to 6. तो n is 6 here. This is how we can calculate the value for n. मेरी बात समझ में आ रही है? तो n वो नंबर है, नेचुरल नंबर, जिससे कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. So do you remember? Do you understand the relation between empirical formula and molecular? Yes ma'am. तो आगे Yes ma'am. इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है. अच्छा, रूल्स हम लोग पहले देख ले. ऐसे रूल्स आपको समझ में आएगा नहीं, बट मैंने दे दिया है कि आप याद रखें इसको. जब तक आप इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, तो आपको ये रूल्स भी बहुत क्लियर नहीं होगा. फिर भी मैं रूल्स पढ़ देती हूँ. First of all, find the percentage by weight of each element present in one molecule of the compound. Suppose आपका कोई भी कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज ही ले लेते हैं, C6H12O6. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अब आपको निकालना है क्या? परसेंटेज बाय वेट. कितना परसेंटेज बाय वेट इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. एक्चुअली ये परसेंटेज न्यूमेरिकल में दिया रहता है, बट ये एक्सपेरिमेंटली भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं. ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, वहां हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज बाय वेट कैसे निकालते. अभी पढ़ना नहीं है. अभी जो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें आपको ये परसेंटेज बाय वेट दिया रहेगा. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, हर एलिमेंट का परसेंटेज बाय वेट वी हैव टू फाइंड आउट. सेकंड क्या है? The percentage by weight of each element is divided by its atomic weight, the gram atomic mass. It gives the atomic ratio of element present in the compound. मतलब अगर आप उसका percentage weight जो है उसको डिवाइड करते हैं एटॉमिक वेट से, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास. ये तो मोलर मास है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. तो ये क्या निकलेगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ इस सेकंड पॉइंट से आपको क्या मिल जाएगा? द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा.
थर्ड क्या है? atomic ratio is what? Number of moles only of each element is divided by the minimum value of atomic ratio as to get simplest ratio of atom. अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है हर केस में जरूरी नहीं है कि आपको होल नंबर में मिले, तो इसमें क्या करना पड़ता है, उसको होल नंबर में लाने के लिए जो उसका जो मिनिमम है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें जो आपको मास परसेंट बाय वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास का जो वैल्यू मिला, वो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा उसी से आप तीनों को डिवाइड करेंगे, तो आपको तीनों के बीच में एक सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में है देन इट्स ओके, बट अगर ये होल नंबर में नहीं है देन द फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द सिंपलेस्ट रेशियो is fractional, then raise the value to the nearest whole number by multiplying with suitable coefficient to convert it into nearest whole number. अगर मान लो कि ये जो आपका वैल्यू आ रहा है n का, उसको आप सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करते तो रेशियो अगर होल नंबर में आता है देन इट्स ओके, अगर नहीं आता है तो आप एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे किसी केस में आ रहा है 1.5, तो 1.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो सबको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी एलिमेंट्स है सबको। राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वी गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसको आपने जो भी समझा नहीं समझा कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल में जब लूंगी तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये कुछ भी ऑक्साइड हो सकता है, which has 69.9% आयरन, ये दिया हुआ है, आयरन कितना है 69.9%, ठीक है, आयरन, और 30.1% ऑक्सीजन बाय मास, 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। अब इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है ऑक्सीजन, तो कैसे करेंगे, ये आपको चार्ट बनाना है और आपको चार्ट बनाना है, और चार्ट बना करके आपको क्या करना है, आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखिए कि जो आपको दिया है आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, तो आप आयरन ऑक्सीजन लिख दीजिए। परसेंटेज आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास, तो आयरन है 39.9% और ऑक्सीजन है 30.1%, ठीक है, परसेंट। अब आप क्या करेंगे कि इसको मास ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, तो चूंकि परसेंटेज 100 में है तो इसको 69.9 ग्राम भी लिख सकते हैं, और ये 30.1 ग्राम हो गया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास। तो आप निकाल के कोई मुझे बता सकता है आयरन का कितना आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो व्हाट इज द गिवन मास, गिवन मास है 69.9 और मोलर मास कितना होता है आयरन का 56, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 1.2425 अप्रोक्सीमेटली जो भी है। अब दूसरे का भी आप ऐसे ही निकाल लीजिए, 30.1 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 16, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 16, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1.88। आप कैलकुलेट कर रहे हो साथ साथ? Yes, ma'am. अब आपको निकालना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसमें एस्टिमेट करके नहीं ले सकते हैं, हाँ इसमें एस्टिमेट करके नहीं ले सकते, जैसे 1.24 है तो 1.25 ले लिए, हाँ ले या सकते फिर हो, 1 ले सकते हो। अब मान लो कि 1.24 या 1.25 जो भी आपने लिया, अब इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो स्मॉलेस्ट है 1.24, तो आपको सिंपल होल नंबर निकालने के लिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे डिवाइड करना होगा, 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1, और 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24, ये कितना आ जाएगा 1.5. 1.5। तो देखो ये रेशियो होल नंबर में तो नहीं है, तो एक सूटेबल नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 1.5 इंटू 2
और अगर आप 1.5 into 2 करेंगे तो ऊपर वाले को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो यू विल गेट 2 हियर और यहाँ आपको मिलेगा 3. तो आयरन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:3. 2:3. तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? Fe2O3. Fe2O3. वेरी गुड. अब आप बताइए, एनीबॉडी वांट्स मी टू रिपीट दिस? No, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. चलिए हम एक और एग्जांपल में चलते हैं. एक और न्यूमेरिकल मैं आपको देती हूँ और मैं वेट करती हूँ कि आप एटलीस्ट सिंपल होल नंबर रेशियो तक निकाल लें. An organic compound contains 80% carbon and rest as hydrogen. अगर 80% कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 20%. 20%. हाँ, तो आप लिखिए find the empirical formula and molecular formula of an organic compound. आपको empirical formula भी निकालना है, तो empirical formula तो आप निकाल लोगे, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मॉलिकुलर फॉर्मूला भी आपको निकालना है. मगर मॉलिकुलर फॉर्मूला जब आपको निकालना होगा तो आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला मास भी चाहिए. तो उसके लिए एक लाइन लास्ट में लिखा हुआ है, एक लाइन लास्ट में लिखा हुआ है, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. आपको ये निकालना है. इसको निकालने के लिए देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट लाइन है, कलर चेंज करो, इंपॉर्टेंट लाइन है, if 2 moles of this compound weigh 60 ग्राम. देखो 2 मोल का दिया हुआ है 60 ग्राम और मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल. तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 30 ग्राम. तो आपको फॉर्मूला मास पता हो गया, मोलर मास पता हो गया 30 ग्राम. एम्पिरिकल फॉर्मूला Yes, ma'am. निकालो और एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालो. मॉलिक्यूलर निकल फॉर्मूला गया. मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास n निकल जाएगा. एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. चलिए देखते हैं बच्चे कितना कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको. हम हो गया. हो गया? रुको 2 मिनट और बच्चे भी करेंगे. चलिए परसेंटेज लिखिए. कार्बन का परसेंट कितना है? 80%. 80%. और हाइड्रोजन हो जाएगा 20%. वेरी गुड. तो अब आप इसका ग्राम में चेंज कर लीजिए मास को. 80 ग्राम बाई 20 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा? 80 बाई 12. और ये कितना हो जाएगा? 20 बाई 6.67. हाइड्रोजन. तो ये आपका आ गया कितना? ऊपर वाला कितना आया कार्बन का? 6.67. 6. तो स्मॉलर कौन है? कार्बन. तो कार्बन के मोल से आप सबको डिवाइड कर दीजिए तो फ्रैक्शन आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मिलेगा. तो कितना आ रहा है? 1:3. 1:3. तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3. CH3. वेरी गुड. तो उसका मतलब आप समझ गए हैं कि कैसे निकालना है. तो फॉर्मूला हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3. ठीक है. अब आप बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला मास 15. 15. 12 and 3. वेरी गुड. ये 15 हो जाएगा. 15. अब आप इंपेरिकल अब आप निकालिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास. तो मैंने भी आपको बताया कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 2 मोल्स इज इक्वल टू 60 ग्राम. तो 1 मोल कितना होगा? 1 मोल इज इक्वल 2 मोल 30 ग्राम. 30 ग्राम. 60 ग्राम. तो 1 मोल कितना हो जाएगा? 1 मोल 30 ग्राम. इज इक्वल टू 30. तो ये मोलर मास हो गया. ठीक है ना? ये मोलर मास हो गया. अब आप बताइए n की वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल टू 2. Molar mass 2. by formula mass. yes, n is equal to 630 by 50. 30 by 50. That is 2. equal to 2. अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंपेरिकल फॉर्मूला को. तो आप C2H6. Ma'am, C2H6. 2H6. 2x6. अब क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो मैं अब 2 एग्जांपल करवा दे रही हूँ. मैं अगले टॉपिक पे चलती हूँ. मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया. हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्लियर है? एनसीईआरटी के भी और Yes, क्वेश्चन ma'am. होंगे या और भी बुक में आपको मिलेगा. यू कैन गो फॉर दैट. चलिए.
तो अब हम अगले अगले टॉपिक पे जाते हैं. यस, अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म. एनीबॉडी नोज व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म? कंसंट्रेशन सुना होगा आपने. Yes, ये ma'am. सॉल्यूशन Yes, ज्यादा ma'am. कंसंट्रेटेड है, ये सॉल्यूशन कम कंसंट्रेटेड. Terms used to express amount of solute in solution. हाँ, तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ये सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना. तो आपने ये टर्म बहुत आप फेमिलियर होंगे वर्ड से, आपको पता भी है. तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? एनीबॉडी इन द क्लास? Homogeneous mixture of two or more than two components in which the Yes. component present in Yes. largest amount which dissolves सॉल्यूशन other का मतलब component. होता है, सॉल्यूशन का मतलब Homogeneous- होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. तो दो से अधिक कंपोनेंट भी हो सकता है. आप घर में शरबत बनाते हो, पानी लेते हो, चीनी डालते हो, थोड़ा नमक भी डाल देते हो, नींबू भी डाल देते हो, शिकंजी बना लेते हो, है ना. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं. पानी तो है, ज्यादा अमाउंट में आपने पानी ही लिया, थोड़ा उसमें चीनी भी डाला, थोड़ा नमक भी डाला, थोड़ा नींबू का रस भी डाला, शिकंजी बनाया, पी लिया. तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हो गए, ये भी सोल्यूशन है. ठीक है, बट हम अपने 11-12 के जो सिलेबस में सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो हम बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे, मतलब 2 कंपोनेंट वाले का ही ज्यादा ध्यान रखेंगे. 2 कंपोनेंट के सॉल्यूशंस, ऐसे जरूरी नहीं है कि 2 कंपोनेंट हो, 2 से अधिक भी हो सकता है. तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाता है एंड द अदर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट. सॉल्यूट सॉल्वेंट आप समझते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो होता है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो. किसी भी सॉल्यूशन में जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूशन. चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ. सपोज आपने पानी लिया, तो पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया, 1 स्पून उसमें चीनी डाला, तो चीनी आपका सॉल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट है. दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया. ठीक है, तो सॉलिड भी लिक्विड में हो सकता है, गैस भी लिक्विड में हो सकता है, किसी तरह का भी सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है, बहुत तरह का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, बट ऑल द सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड या फिर व्हेन अ लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, तो हम इनको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. और कभी कभी गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, तो ये ट्रू सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड. चलो, सॉलिड इन लिक्विड भी हम ले सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड भी हम ले सकते हैं. तो जो दोनों में जो चीज कम है दैट इज सोल्यूट, और जो ज्यादा है दैट इज सॉल्वेंट. जैसे अल्कोहल वाटर का सोल्यूशन आप बना रहे हो, आपने 95 ml वाटर लिया और 5 ml आप लेते हो अल्कोहल. 5 ml अल्कोहल, 95 ml वाटर, 100 ml आपका सोल्यूशन बनता है. अल्कोहल इज इन स्मॉल अमाउंट, water is in larger amount, so water is solvent and solute is your alcohol. अब इसी सॉल्यूशन को वाइस वर्सा भी आप बना सकते हो. आप ले सकते हो 95% अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, और उसमें वॉल्यूम ले सकते हो ml. 95 ml आप प्योर अल्कोहल ले सकते हो और उसमें 5 ml वाटर डाल सकते हो. बड़ा सुनने में अजीब लगेगा, तो यहाँ पर वाटर सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है एंड सॉल्वेंट इज योर अल्कोहल. तो कुछ भी हो सकता है. जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यस, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, मगर हर जगह वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है जरूरी नहीं है. वो डिपेंड करता है कि अमाउंट. अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, the one which is in smaller amount is called solute and the one which is in larger amount is called solution. Ma'am, if both the things are in the same amount, then क्या ये सवाल आपके दिमाग में आया था? Yes, ma'am. सकता है ना, 50 ml वाटर ले ले और 50 ml अल्कोहल ले ले, अब बताओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? तो ऐसे केसेस में आप किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में इंडिकेशन नहीं है. अदरवाइज जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें ये आपको बता दिया जाता है कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है. अदरवाइज आप किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं. एक और बात मैं यहाँ बता रही हूँ, हालांकि इसको डिटेल में सोल्यूशन आपको पढ़ना है फिर क्लास 12 में भी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट. सोल्यूशन का जो फेज होता है, फेज मतलब जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो फेज होता है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज, कि वो लिक्विड स्टेट में है कि गैस स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में, तो वो डिपेंड करता है द फेज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिस फेज में होगा सॉल्यूशन भी उसी फेज में होगा। जैसे आपने गैस में कुछ डिसॉल्व किया, मतलब गैस में कुछ मिक्स किया एक दूसरा गैस, तो जो गैस स्मॉल अमाउंट में है और जो गैस बिगर अमाउंट में या 10 पार्टिकल गैस में यूज डाला, वो भी एक तरह का सोल्यूशन बन जाएगा। बट ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा, बट सोल्यूशन हो सकता है। अब गैसियस सोल्यूशन है तो आपका फेज क्या होगा, गैसियस फेज होगा। और अगर आप सॉलिड में डाल रहे हैं जैसे जेमस्टोन वगैरह में, वो भी एक तरह का सोल्यूशन है, मे नॉट बी अ ट्रू सोल्यूशन बट वो भी एक सोल्यूशन है। वहां पे आपका फेज सॉलिड होगा, और अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है तो आपका सोल्यूशन लिक्विड होगा। ये बात क्लियर है सबको? तो फेज ऑफ सोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है? फेज ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड, सॉल्यूशन तो पहला वाला क्लियर है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। एक कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाले हैं एक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट गिव्स यू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। हम डाइल्यूट कहते हैं, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है। कंपैरेटिव, जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, एक बच्चे ने 1 स्पून डाल के शरबत बनाया चीनी पानी का घोल, और एक बच्चे ने 2 स्पून चीनी डाल करके चीनी पानी का 1 ग्लास घोल बनाया। दोनों ने सेम वॉल्यूम लिया, 1-1 ग्लास, 1-1 लीटर भी बोलो या हाफ लीटर बोलो, 100 ml बोलो, जो भी वॉल्यूम पानी का दोनों ने सेम लिया, बट एक ने 1 स्पून ऐड किया, दूसरे ने 2 स्पून ऐड किया। तो जिसने 1 स्पून ऐड किया आप कहोगे ये थोड़ा डाइल्यूट है, और जिसने 2 स्पून ऐड किया शुगर आप कहोगे मैम ये सॉल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेटेड है। तो जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा दैट इज डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा दैट इज कंसंट्रेटेड, if the amount of solvent is fixed। मेरी बात समझ में आई सबको? A dilute solution Yes, has ma'am. small quantity of solute while concentrated has large quantity of solute in the solution। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अगले स्लाइड में हम जाते हैं। अब क्या है कि अभी तक जो मैंने बात किया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, तो ये आपको बताता है कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो आप किसी में भी ले सकते हैं, आप ग्राम में ले सकते हैं, आप चाहे तो मोल्स में ले सकते हैं, आप चाहे तो इक्विवेलेंट वेट में भी ले सकते हैं। तो जब आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मास ऑफ सब्सटेंस है, उसका यूनिट आप बदल देंगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स भी बदल जाएगा। तो उस तरह से हम बहुत सारे टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन को अलग अलग टर्म्स में एक्सप्रेस करते हुए हम आते हैं फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज, ये आपने 9 में पढ़ा है, मास परसेंटेज। पढ़ा है ना मास परसेंटेज? दिस थिंग इज नॉट Yes, वेरी। ma'am. तो व्हाट इज मास परसेंटेज? It may be defined as the number of parts of mass of solute per 100 parts by mass of solution। मतलब आपने कितने पार्ट्स सोल्यूट के डाले हैं एज कंपेयर टू 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन जो भी आपने डाला है उसके 100 पार्ट्स में आप लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में कितना पार्ट्स आपने सोल्यूट डाला है। तो परसेंटेज बाय मास का मतलब होता है W by W। स्मॉल w इज द मास or the weight of solute, और bigger W is the weight of solvent or solution, जो भी आप ले रहे हैं, weight of आपका solution है यहाँ पे। तो ये weight of solute by weight of solution into 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। इसमें समझने के लिए मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ये पढ़ा हुआ आपका 9 में, यस। अब हम आते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा एक बार बैक, आप बताइए कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म था ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्योंकि ये Yes, भी ma'am. वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, और वेट कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए मास परसेंट भी जो है वो नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आप लिख लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है।
अब हम आते हैं मास वॉल्यूम परसेंट. It may be defined as the mass of solute present in 100 centimeter cube of solution. For example, if 100 centimeter cube of solution contains 5 gram of sodium hydroxide, then the mass volume percent will be 5%. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये निकालने के लिए that is the mass volume percent. तो mass of solute होगा, but the solution का हम volume consider करते हैं. solute का weight और वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम. जैसे 5 ग्राम शुगर आपने 100 ml सॉल्यूशन में डाला है पानी में, तो ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट बन गया. क्लियर है ये बात? तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जो भी सॉल्यूट होगा उसका वेट लेंगे और जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम लेंगे. मतलब ये लिक्विड सॉल्यूशन है तभी तो आप वॉल्यूम ले रहे हैं. इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा. क्लियर है? एनी डाउट? बोलो. टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ना. यस, ये वॉल्यूम है. नीचे आपका क्या आ रहा है? वॉल्यूम. और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, इसीलिए मास वॉल्यूम परसेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ लिख दो टेम्परेचर डिपेंडेंट. एनी डाउट? नो मैम. अब तीसरा, ये सब आपने 9 में पढ़ा हुआ इसलिए आपके लिए बहुत नया नहीं है. वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंट वॉल्यूम and used to prepare such solution in which both components are in liquid state. Volume by volume का मतलब होता है कि दोनों component आपका liquid ही होना चाहिए. It is the number of parts by volume of solute per 100 parts by volume of solution. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए? ये वॉल्यूम, स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अब ये तो वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा.